उससे पहले हमारे साथ यहाँ पे इत्तिकार जी के बहुत ही करीबी दोस्त मौजूद हैं। We would also like to invite on stage आप सभी की जोरदार ताली के साथ please welcome the former captain of Indian cricket team मोहम्मद अजहरुद्दीन जी। जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे दोस्तों से यहाँ पे चीजें सुनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी इन 2 शीट्स आपको ये बताता है कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए आपको हार नहीं माननी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा एक डुअल सिटीजनशिप यहाँ पर पाने के लिए जितनी मेहनत इन्होंने की है, indeed that is something which is going to be an absolute believer and of success procedure. As we say, success is not measured by how much difference we are making in people's life. Indeed, we are here with something really phenomenal. और इसी के साथ मैं चाहूंगी सर के छोटे भाई इशफाक जी यहाँ पे कृपया करके आए। जी हाँ सर, can you please have you here onto the stage? The person who has flown the skies to be a part of this momentous occasion. जोरदार ताली हो जाए, come on everybody. आज की शाम में किसी भी चीज में कंजूसी हो ना हो, तालियों में शोर शराबे में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्लीज सर, यस। बट मानना पड़ेगा करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट कि एक इंसान के पास भी कुछ भी इनके लिए कम बोलने के लिए नहीं है। सबके सब इनकी तारीफ करते हैं और सबके सब ये कहते हैं कि इनसे जो भी मिलता है बस दिल पे बस जाता है। आई थिंक दिस इज व्हाट अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज ग्राउंडेडनेस इंडीड। एंड नाउ एवरीवन, हम चाहेंगे सभी मीडिया वाले हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लीज आप सब बने रहें। We would love to take all the photography, all the pictures and all the videos. Zindagi in 2 Sheets is a beautiful documentary based on the man who had changed the vision and who actually lived the dream of millions and billions who are starting their life in US indeed. Well everybody, as Zindagi in 2 Sheets, it's going to be a heartfelt journey which is absolutely based on the inspiring life of Mr. इत्तिकार शरीफ जी। आज हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे सनस यहाँ पे ओम शील प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर यूएस ब्रांच डीके ओम शील विच इज लेड बाय अ ग्रेट पैशन ऑफ मिस्टर खुर्रम सैयद जी, जिन्होंने इतनी प्यारी फिल्म यहाँ पर बनाई है। उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। A big applause for him please. The film which carries the honesty, the hard work and the emotion of the entire team. And now let me take a moment to introduce you all to the dream which turned into the reality. जो प्रोडक्ट की गई है, produced by खुर्रम सैयद जी, कल्पना राजपूत, डॉली तोमर, directed by रजनीश दुबे जी, edited by देवनांदे जी, presented by DK Om Sheel Productions. Om Sheel is not just a production house everybody, it's indeed a family. और जिस तरीके से इन्होंने इसका पूरा डायरेक्शन किया फिल्म का, ये आपको बताती है, दिखाती है कि कितना प्यार इन्होंने आज के हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग, जी हाँ, उन्हें दिया है। Thank you so very much for doing it in such a beautiful manner. Ladies and gentlemen, I must say something about Khurram Sayyed ji. He's not just a producer, he's a believer. And Om Sheel is not just an idea, it is something which is carrying out the names, the trust all the way from US. We would like to encourage the whole team, the whole fraternity for doing such a wonderful job. इसी के साथ हम चाहेंगे सईद नूर जी, आप भी प्लीज मंच पर आए। यस सर प्लीज, जोरदार तालियों के साथ everyone, please welcome and put your hands together. कहते हैं when a team work, it's a dream work. Individual commitment to the group makes the company work, the organization work, the society work and the civilization work. And हमारे साथ of course हमारे former captain of Indian cricket team मोहम्मद अजहरुद्दीन जी यहाँ पर मौजूद हैं, the best ODI batsman in the world during 1990s and also Minister of Minorities Welfare of Telangana. बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी आप काम करते हैं और हम सबको इतनी प्रेरणा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूंगी रजनीश दुबे जी, please kindly come and join us onto the forum side. Devanamdev ji, Dolly Tomar ji, yes, the vision behind the cinema indeed. बहुत मेहनत की है इन्होंने, एक बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है
The Zindagi initiates, ladies and gentlemen, as we say, this is just the beginning. फिरोज खान जी, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे. Can we have you here onto the stage, please? बहुत ही प्यारी टीम, बहुत ही प्यारी मेहनत आपने की है यहाँ पर और वो दिख कर आई है. I think it's a very tough job. किसी की पूरी जिंदगी को एक घंटे की मूवी में पिक्चर करना, it's not an easy task. And जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं जिन्होंने इतनी प्यारी बातें कही, आप सभी का धन्यवाद. I think आज की शाम डेडिकेटेड है हमारे आज के स्टार ऑफ द इवनिंग. जी हाँ, जिनके लिए हम सबके पास इतना सब प्यारा बोलने के लिए है. एंड ऑल्सो एवरीबॉडी, जितने लोग यहाँ पे फोन से पिक्चर्स ले रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी सीट पर आप सब बैठ जाइए. डोंट वरी, वी हैव ग्रेट पिक्चर्स कमिंग इन. थैंक यू. इफ्तिकार जी, एंड आज की शाम आप ही को डेडिकेटेड है. सर मैं बस एक ही बात कहूंगी, जब मैं यहाँ पर आई थी और लोगों से आपके बारे में मैंने सुना, सबने कहा आप एक बार मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा. ये दिल में आते हैं इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार ताली हो जाए दिल से. जी हाँ, जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट हमारे दिल में इनके लिए है. एंड अ मैन हु एब्सोल्यूटली नीड नो इंट्रोडक्शन. आपके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. सब इतना आपको प्यार करते हैं, इतने प्यार से आपको यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं और आपसे ले रहे हैं. मैं आपसे एक और सवाल है जो करना चाहूंगी सर, एंड द माइक इज ऑल योर्स इंडीड. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत देश से आप बिलोंग करते हैं, देश के एक नागरिक जिनको सबसे पहली ड्यूअल सिटीजनशिप मिली, जब वो आपको मिली तो कैसी फीलिंग थी, क्या एहसास था, आप बताना चाहेंगे? Wonderful. That's the one of the best moment in my life or anybody's life that I was awarded with the first OCI. उसका नाम है. जब अनाउंस किए थे, जब dual citizenship बोले, but it is not a real dual citizenship. जब when you cannot vote, you cannot take vote, then it's not a complete citizenship. So then they changed the name to OCI, and I'm very happy that it was started the process at that time during the Vajpayee government, when I was keep on pounding to any minister who visits to US. I would go and lobby कि भाई हमको क्यों नहीं dual citizenship दी जाती थी, नहीं दी जा रही है, जबकि कई कंट्रीज हमारे अतराफ में, US, कनाडा, US, UK तो है ही है, बट इवन हमारे भारत के अतराफ के कंट्रीज में भी जो है ये प्रोसेस है, और हमारे लिए क्यों नहीं है. तो ही वॉज वेरी शॉक, वाजपेयी जी. नॉट ओनली शॉक बट ही सेड, हमेशा आप कई लोगों को याद होगा कि आंखें बंद करके रहते हैं लेकिन सब सुनते रहते थे हर चीज. तो जब आंख खोल के बोले, हाँ मैंने सुना आपका छोटा सा रिक्वेस्ट और छोटा सा भाषण. Yes, मैं इंडिया जाके I will talk to my associates, my cabinet and everything, and will start the process कि हो भी सकता है या नहीं. तो डिबेट नहीं थे. Then the government changed, then came Dr. मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ गई. फिर then they also picked up the same process of how to give a real dual citizenship. But अनफॉर्चुनेटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई वर्ड्स है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं दी सकती है, बट यू कैन अमेंड इट लिटिल बिट, उसको OCI कहा जा सकता है. तो OCI दी जा सकती है. देन वी विल सी लेटर ऑन हाउ दिस OCI वर्क्स, एंड इफ वी थिंक दैट दिस इज इज गोइंग टू वर्क, देन रियल डुअल सिटीजनशिप भी दे सकते हैं. तो ये था. एंड देन प्रवासी भारत का दिवस जो 2006 में हुई, फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद, हाईटेक सिटी में एक नया कन्वेंशन सेंटर बना गया, तो उससे इनॉग्रेशन यही फंक्शन से हुआ. तो जहाँ प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी जी भी थे, सब थे. देन दे अनाउंस फर्स्ट डे इनॉग्रल में जो है मुझे अवार्ड OCI कार्ड दिया गया. आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे उतना ख्याल नहीं था कि दिस इज एन OCI. मैं समझा ये तो मैं इंडियन सिटीजन भी हूँ, US सिटीजन भी हूँ. बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि आई कैन नॉट वोट एंड आई कैन नॉट टेक वोट. बट आई एम स्टिल हैप्पी
I was the recipient of the first, so that later on millions of people have taken OCI. They feel comfortable in OCI because they can come anytime, live here as long as you want, no need of visa, no need of रेड टेप, कोई बिजनेस करना है ओपनली बिजनेस करो, और जो भी आपके मन में आता है कॉलेजेस खोलो या जो करना है करो, एंड दैट इज the beauty of the OCI. I'm very happy that happened, but I'm continuously lobbying how should we get the real dual citizenship. हालांकि it's nothing but taking votes, giving votes. but अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में तो बैठे हैं लोग, वो बोलते हैं कि शायद ये एनआरआई आना शुरू होंगे महात्मा गांधी की तरह, वो भी एनआरआई थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद वो भी दूसरे कंट्री के थे, तो ये लोग आएंगे तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा. तो आई एम जस्ट maybe jokingly I have said, but they did not approve yet for dual citizenship. But if we were given chance, definitely like चाइना की इकोनॉमी आप देखें कि आज जो लेवल पे है, दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड, और बिकॉज ऑफ द नॉन रेसिडेंट चाइनीज. नॉन रेसिडेंट चाइनीज भी है, वो लोग डुअल सिटीजन भी है, तो देन दे टुक इट कि भाई हम अमेरिका से चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, चाइना को तरक्की देंगे, और वो हुआ. नाउ चाइना इज अ लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 2 है इन इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन भी उनका अच्छा है. So that could have happened in India also. We are still doing very well, but अगर से वो हो जाता तो काफी NRIs जो बाहर हैं, काफी citizens of the other country, UK, US, Canada, जहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी है वो जरूर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इंटरेस्ट बताएंगे. तो वो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू गिव dual citizenship, but one day it will happen. Or that's a very long answer for you, but hopefully. So nevertheless, आपकी पूरी life का ये जवाब है, so why not? And you're indeed a pride of India. और बहुत गर्व की बात है कि एक भारतीय नागरिक जिन्होंने नाम इतना ऊपर तक पहुंचाया बाहर भी. मेरा आपसे ये सवाल अगला है कि हमारी बहुत ही प्यारी प्रोडक्शन टीम ओम शील, उन्होंने पूरा ट्राई किया है कि आपकी जिंदगी को डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिखाया जाए, लेकिन अगर, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है, अगर मैं एक जुमले में आपसे जानना चाहूँ, अपार्ट फ्रॉम जिंदगी इन 2 शेड्स, अगर आपकी जिंदगी को कोई और आप नाम देना चाहें तो क्या होगी? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, but I think definitely I will be happy, and not just me. Most of our NRIs who are in my type of situation, they'll all be happy and excited to come back, move back to India and live a comfortable life. And वो हो ही रहा है. Anybody who is over 60 in overseas countries, वो अपने देश की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारे रूट्स कहाँ हैं, हमारे फैमिलीज कहाँ हैं, वहाँ जाने के लिए जो है वो बेचैन है. और कई तो रिटायरमेंट के बाद आ ही रहे हैं, और अर्ली भी आ सकते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लिए, दे मेड अप देयर लाइफ ब्यूटीफुली एट द एज ऑफ 40 और 50. वो लोग भी वापस आके आराम से इंडिया में रह सकते हैं. तो दैट इज द मैसेज फॉर ऑल माय NRIs, ऑल माय citizens of other country, give little back to India, and I think it will not only just help the Indian economy, but it will help you. India is a booming country, a new booming country, के यहाँ के opportunities will be much better for you than the US or China or anybody. तो आप लोग सब इंडिया वापस आए और अपने देश को स्ट्रांग बनाए, और अपना देश इट्स वेरी डिफरेंट. तो अपने देश को जो है आप तरक्की दे सकते हैं. Thank you. And yes, ladies and gentlemen, with this, the question you have been waiting for a while, now it's going to be this. So, my question to you is, it was your life, and you watched it for next like 60 minutes altogether. My question to you is, how was the feeling watching yourself in the film throughout, and your true life indeed? Do you think that we have done good justice to the life we have lived? So not really. I'm never satisfied with what I did. I want to do more, but I'm now 65. I hope I could do. I'm capable of doing it. I will keep on doing what I could do for people of Hyderabad as well as India, so that we all
will be part of the development. जब मैं गया था, I was just a normal son of a railway master जिसे कहते हैं, मेरे father railway master थे. So it was, I think I'm satisfied for what I did, but I could have done much better बोल के ख्याल आता, because I'm always a laid back person. You may all think that I worked hard. I really did not work hard. शायद work hard करता तो अंबानी भी नहीं थे मेरे टाइम में, उनके लेवल पे भी जा सकता था, बट नहीं हुआ वो. एग्जाम्पल देके अंबानी के फादर भी साइकिल पे जो है कपड़े बन के जो है बेचते थे, बट उनके बेटों को गोल्डन स्पून मिल गया. बट दैट अपॉर्चुनिटी आई डिडंट गेट इट. मुझे कोई गोल्डन स्पून नहीं मिला. आई हैड टू मेक माय ओन लाइफ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एज 21. एक्चुअली 20 से मैं यहाँ ही हार्ड वर्क कर रहा था. यहाँ हार्ड वर्क तो नहीं, इजी वर्क. आई वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन हैदराबाद फॉर 2 years, and then I left to US. There I started from the scratch. You heard it in there, which is all true, that I was sleeping on a newspaper and yellow pages as my pillow. So that's how the life was, and then things changes, and ऊपर वाले ने भी मेरी काफी मदद की है. फैमिली की सपोर्ट थी, पूरे बहनों और भाई की. तो I was able to achieve what I achieved, and I think it's not a big deal. Any one of you who have achieved, even example like a good MC, he does not become like that. Practice, and I saw your profile. You worked hard, and you became better and better on every event that you did. And I wish you that you will do much better in your future life. Thank you. Thank you so very much, sir. आप अपने देश की मिट्टी से इतने जुड़े हुए हैं, and you have been an exceptional motivator throughout. And I hope आपकी ये इंस्पिरेशन हमारे सोसाइटी को जाए और आपके जैसे बहुत सारे लोग बिल्कुल काम करते रहे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत ही बढ़िया और अच्छी लगी. अनफॉर्चुनेटली ये लोग यूएस में आके भी शूटिंग करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ राइट नाउ द सिचुएशन, वहाँ का वीजा सिचुएशन एंड ऑल दैट, तो डॉली ने सजेस्ट किया कि लेट्स फिनिश इट हियर. तो मैं बोला ठीक है, यही कर दो, फिर आइंदा बनाएंगे यूएस में. जब हमारे प्रोड्यूसर, आई मीन डायरेक्टर और असिस्टेंट को वीजा वगैरह मिल जाएगा, तो यूएस में भी एक जरूर मूवी वैसी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 बोलो या कुछ और नाम से बोलो. लेट्स सी व्हाट दे विल से, व्हाट आइडियाज दे हैव टू डू इट. टू मी इट्स ऑल न्यू. मैं सोचा भी नहीं. डॉक्यूमेंट्री इज मेड, इट्स नॉट टू for any financial benefit, but it is an example people could use कि भाई एक गांव का बिल्कुल मामूली सा लड़का एंड कुछ कर सकता है. तो अपॉर्चुनिटी सब तो बहुत है. वो जमाने में तो अमेरिका में जाके बिजनेस करना भी मुश्किल था. आजकल तो आप लोग यहाँ बैठ के भी अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ऑल ऑनलाइन, एवरीथिंग इज, यू डोंट हैव टू हैव अ फिजिकल ऑफिस इन यूएस. यहाँ बैठ के पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, वहाँ बैठ के भी आप यहाँ के बिजनेसेस को देख सकते हैं. छोटा मोटा मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे. तो काम, एक मेरी टीम है, मेरे 2 साथियाँ हैं, अदनान और दानिश. आई थिंक दे आर हियर एंड दे हैव बीन हेल्पिंग मी. एंड ऑफ कोर्स यूएस के बिजनेस में माय यंगर सिस्टर, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ एंड ऑल माय नेफ्यूज आर ऑल इन्वॉल्व. तो दैट इज हाउ, जब आपकी केमिस्ट्री बनने लगती है अपने साथियों से, अपने फैमिली के साथ, तो जो है आप आगे बढ़ते हैं. ये केमिस्ट्री हमारी ऐसे ही होगी. आई थिंक रजनीश विल से कि कोई बनाना बोल के कुछ नहीं था, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड देन इट हैपेंड. तो रजनी, बोलो तुम क्या, कैसे बन गई ये? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जो हम यहाँ हमारी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से हैं. आपके प्यार और आपकी मोहब्बत की वजह से हैं, जो आप इफ्तिखार भाई से करते हैं. मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के पास कहने को कहानी है, मगर दुनिया में 5% लोग हैं जिन पर कहानी बनती है, जिन पर कहानी कहने को मन करता है. ये शख्स ऐसे हैं जो
पहली नजर में ही दिल में उतर जाते हैं। और हमारे आजर भाई बैठे हुए हैं, सब इतना प्यार करते हैं इनको कि वो प्यार रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आया और हमने एक छोटी सी कोशिश की। और आशा करता हूं आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी बहुत बहुत, और आपकी तालियों से मुझे पता चलेगा कि अच्छी लगी नहीं लगी। तो और इनकी शख्सियत इतनी है, इतनी विशाल है कि हम बहुत छोटे पड़ जाएंगे कुछ कहने के लिए, क्योंकि अजहर भाई और हमारे बहुत सारे दोस्त इनके इतना कुछ कह दिया कि कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। बस मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है इफ्तिकार भाई का और उनके पूरे परिवार का, हमारे अशफाक भाई का, खुर्रम भाई का, डॉली मैम का, देबू और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। और मैं देख रहा था, एक्चुअली क्या हुआ कि भीड़ इतनी हो गई थी कि मैं नीचे बैठ गया, तो लोग ने यार ये क्यों बैठा हुआ, तो मैंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा, डोंट वरी। तो मैं बैठ के देख रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और बस मैं रो ना दूं इसलिए मैं माइक किसी और को दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक तालियां ये भी बता दिए कि डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 का इंतजार सबको रहेगा। इंडीड। गुड इवनिंग एवरीवन। एक फिल्म मेकर होने के नाते हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि इंसान बड़ा कैसे बनता है। पैसा, अथॉरिटी, पावर नहीं, इंसान बड़ा बनता है विश्वास और डिसिप्लिन से। जब हम कभी किसी की जिंदगी पर कोई फिल्म बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा ये ख्याल आता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि सच्चाई को पूरा सच दिखाना पर्दे पर बहुत मुश्किल होता है और हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। पर इफ्तिकार जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे साथ थी। कभी भी हमने कुछ करने के लिए कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं ये कैसे करूंगा, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया। कुछ भी, हमेशा रेडी थे। और सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी, एक सिंगल फ्रेम भी नहीं देखा। आज पहली बार इस प्रीमियर में उन्होंने पूरी फिल्म देखी है। हमारी पूरी टीम, हमारी टीम ओमशील प्रोडक्शंस एंड डीके ओमशील प्रोडक्शन पर इतना विश्वास दिखाने के लिए थैंक यू सो मच इफ्तिकार जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जिंदगी इन टू शेड। थैंक यू। Thank you so very much, ma'am. And I think, ladies and gentlemen, with this Zindagi in Two Shades, and as we see Shah Rukh Khan ji ke andaz mein, this is just the beginning, picture abhi baki hai. So we are going to have so much more coming in the near future. ये मैं बोला 2 मिनट के लिए मीडिया वेट करेगा। मैं चाहूंगी मोतीशा अली खान जी से कि आप स्टेज पर आ जाएं सर, and we would love to hear a few lines from you as well. अजरुद्दीन सर, सारा हिंदुस्तान आपके क्रिकेट का बड़ा फैन है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टेज पर आइए, उसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे, पर पूरा मीडिया और सब आपको करीब से देखना चाहते हैं। इनको माइक दे दूंगी 2 मिनट से। क्या बोले? दो मिनट तारीख। आई थिंक मैं सोच रहा था कि आज इफ्तिखार भाई पूरा लाइमलाइट में रहे, बट लेकिन वो वहाँ आने के बाद भी ये लाइमलाइट में हर बार लाइमलाइट में ही रहते हैं। लेकिन मैं और अच्छी बहुत सी चीजें बातें की थी, तो मेरे ख्याल में जब पार्ट 2 बनेगा, जिंदगी इन ऑल शेड्स नॉट 2 शेड्स, तो जब बनेगा तो जब उसमें थोड़ा सा मेरा बता देना। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आके यहाँ पे, और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी बहुत अच्छा आप लोग ने बनाया, जो प्रोडक्शन टीम है और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, और खुर्रम भाई स्पेशली कहाँ है, शिकायत से आए हुए, तो मैं उनका भी बहुत यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और अशफाक है, अजहर भाई है, नूर भाई है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग रियली एंजॉय करे होंगे।
जो भी आपने देखा है इफ्तिखार भाई सेम है, वैसे ही है। और उनके बारे में जितनी भी तारीफ करे बहुत कम है, क्योंकि तारीफ के मोहताज नहीं है। कोई भी घर पे आता है तो लिफाफा लेके जाता है, तो ये बिल्कुल सब लोग को पता है। और मैं आपके और ज्यादा सीक्रेट अब बोल सकता हूँ, बट लेकिन अपना एक एक हर बार आप जब भी बोलेंगे एक बोल के बोलूंगा। और लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर सेलिब्रेटेड टुडे with this documentary, and whatever you have done in life and whatever you are going to do in life, and may Allah protect you and bless you forever with His divine blessings. And I hope you carry on the work which you have been doing. I think you have a very blessed heart and Roshan heart, so you have a very clean heart. Inshallah, Allah will, give you everything whatever you want in life. And I'm very happy to be standing next to you. I respect you a lot, and you also know that I can never say no to you. But sometimes I said no, but very rarely. But I can never say no to him. He's outstanding personality. I have the highest and utmost respect for him, and I wish him the very best. He's traveling, I think, on the 15th, but he'll be back after 3 months. So this is also another secret I'm telling you. And inshallah, we look forward to seeing you, and you have a very, very safe flight. And respects to everyone in the family. And Ashraf also is here. He like my brother. He's my younger brother's classmate. But ऐसा लगता है कि मेरे क्लासमेट ज्यादा है मेरे भाई से। लेकिन अजहर भाई हैं यहाँ पे, और नूर भाई तो बिल्कुल कनेडियन है, एकदम लॉयर है। और जितने भी लोग हैं, मोहतशम में भी आए हुए हैं, वेरी आउटस्टैंडिंग वेट बॉडी बिल्डिंग। मेरे को भी बहुत मौका मिला, आप लोग मुझे भी काफी टिप्स दिए और काफी एक्सरसाइज भी कराए हैं। और आज मेरा थोड़ा वेट बढ़ा है, फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फिर से थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड मैडम इज हियर, डॉली, तो मैडम ही बोलता हूँ मैं ज्यादातर। डॉली इज हियर, आई विश यू द वेरी बेस्ट। एंड आपको भी, सॉरी आपका नाम है इतना, रजनीश को भी आपने ही लिया था ना उस दिन मेरे से। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूरा बताइए, मैं बोला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड आई विश सफा द बेस्ट ऑलवेज इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मुकेश जी से भी खास निवेदन है, कृपया कर आप मंच पर आ जाएं। जी हाँ सर, मुकेश जी, कैन वी हैव यू हियर ऑन स्टेज? यस प्लीज। आई थिंक मुकेश जी की सारी बातें आपने वीडियो में सुन ली होंगी। बहुत अच्छी बात है, काफी चटपटी बात है इंडीड। एंड एज ही सेड, बॉडी फॉर ऑल। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टार ऑफ द इवनिंग, जिंदगी इन 2 शेड्स, presented by Omshil Productions and DK Omshil Productions USA. जी हाँ सर। सुरेंद्र अग्रवाल जी से भी खास निवेदन है। यस सर, प्लीज रिक्वेस्टिंग यू कि कृपया कर आप मंच पर आए। और इसी के साथ ब्यूटीफुल टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ जेस्चर, टोकन ऑफ